Hi, good afternoon. My name is Pratik Gupta and welcome back to Unacademy. So basically जैसे आपको पता है कि हमारी जो अभी सीरीज चल रही है लेक्चर्स की वो है अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और अभी तक हमारी सीरीज में हमने 5 अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया है। और आज हमारी लेक्चर की सिक्स्थ मतलब हमारे सीरीज की सिक्स लेक्चर की बारी है। ठीक है। So the point is like we only simply start doing something else, not something else I would say, कि हमने बीच में एक दूसरा टॉपिक उठाया था। जैसे आप जानते हैं कि ऑन 2nd of October वी अपलोडेड वन वीडियो रिगार्डिंग दी गांधीयन इकोनॉमिक्स। सो रियली होप आप लोगों को पसंद आया होगा रिगार्डिंग व्हाट वर द थॉट्स ऑफ गांधी जी रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स एंड दी अदर, एंड आई एम रियली होप दैट यू पीपल आर बीइंग एबल टू गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट। ठीक है। अब बात करते हैं देखिए अपने लेक्चर 6 के टॉपिक की। जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी तक हमने जो हमारे 5 टॉपिक डिस्कस हुए हैं, under that in the first lecture we discuss about the AIIB. In the second lecture we discuss about the Asian Development Bank. In the third one we discussed about the African Development Bank. Then after that we discuss about the New Development Bank. In the last lecture we discuss about the FATF, Financial Action Task Force. So if we talk about all the full forms, so these are the 5 things. So I think you people are aware, so there is no need to repeat it again. And now today we need to discuss the next topic, and that is what we're going to discuss, the topic of something called BIS, Bank for International Settlements, and related things to it, that is what is called as a बेसल नॉर्म्स। हमारे प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुके हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा BIS का और बेसल नॉर्म्स के बारे में। ठीक है। सो अंडर दैट आई विल टेल यू व्हाट इज दिस BIS एंड आई ऑल्सो टेल यू व्हाट आर दिस बेसल नॉर्म्स। ओके। आप मान के चलिए हमारे प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चंस इसमें से बेसल नॉर्म्स में आ चुके हैं। Sometimes the questions were so easy that people were able to mark it within few seconds, I would say. And sometime the question was comparatively tough. Like for example, in 2018 or 19 prelims, there was a question from the basal norms regarding, under that they have given 2 statement, जिसमें एक स्टेटमेंट में पूछा बताया गया था about the meaning of capital adequacy ratio, and the second statement was about that the ratios are being fixed by the bank itself. So that was the 2 statement given. Out of that, the first statement was correct and the second statement was incorrect. And moreover, once there was a question regarding that Basel is related to what. So the 4 options were banking, fiscal policy, international organization, what else. So it was about the banking. So questions बहुत simple आए हैं, बट मान के चलिए जब हम क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, सो नॉर्मली वी आर बीइंग स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1 क्लास, because whatever things we are having as a part of Basel are being quite technical and complicated. तो इन चीज़ों को समझने के लिए, उनसे रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए वी आर बीइंग डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन क्वाइट डिटेल इन द क्लासरूम, बिकॉज इफ अ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द बेसल देन द पीपल विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। मोर ओवर, साथ ही साथ कहीं ना कहीं बेसल को अच्छे से डिस्कस करने के पीछे रीज़न ये भी होता है जिससे कि आपको ये पता लगे कि आपका जो पैसा बैंकों के अंदर है, इज इट रियली काइंड ऑफ सिक्योर्ड और नॉट। ठीक है। किसी बैंक की बेसिक स्टेबिलिटी को कैसे हम माप सकते हैं, कैसे उसे मेजर कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज हेल्पफुल इफ यू नो द बेसल नॉर्म्स। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज प्रतीक गुप्ता एंड माय कोड फॉर दी अनअकैडमी PG UPSC। सो बाय यूजिंग माय कोड यू कैन गेट 10% ऑफ। So the topic is Basel norms / accord and BIS, Bank for International Settlement. But देखिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले we need to discuss about the Unacademy. So as you know, Unacademy is the largest learning platform in our country in the online mode. Why you need to choose Unacademy? Because Topaz are part of us. So you can choose the faculty as per your liking and as per your subject requirement by joining the Plus course and Iconic courses. Then you can join us on the Telegram and community channel of the Unacademy app. Then you will be able to get the notes for only 10,000 rupees. So that is the last chance. And moreover, you can use code PG UPSC for the purpose of getting 10% off on the Plus course and Iconic courses. And on combo also, you will be able to get 10% off. Then what are the subscription offers you have for the optional? So again, if you simply go for the 10% off, then you're going to save almost 166 rupees per month. Okay. Then the batches started on 29th of September. Then 0% EMI option you can also avail. ठीक है। अब आते हैं देखिए बात के ऊपर। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये BIS है क्या। जैसे कि नाम से पता लगता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स।
That means at international level, whatever issues we have regarding the banking, that is supposed to be settled. Okay. अब देखिए जो BIS नाम का बैंक है, ये है आपका स्विट्जरलैंड के अंदर, अ ब्यूटिफुल कंट्री ऑन दिस अर्थ, एंड मोर ओवर इट इज ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज अ हेवन ऑन अर्थ, जैसे हमारे कश्मीर को भी बोला जाता है। तो जैसे BIS जो है स्विट्जरलैंड में है, ओके, एंड देन आफ्टर दैट सो इन स्विट्जरलैंड देयर इज अ सिटी कॉल्ड बेसल। इन दिस पर्टिकुलर सिटी यू हैव दिस बैंक कॉल्ड BIS। अब देखिए हम थ्योरेटिकल चीज़ों की बात करें तो बेसल है क्या, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर लेके आता हूँ। लाइक बेसल इज अ सिटी इन नॉर्थ वेस्टर्न स्विट्जरलैंड ऑन द रिवर राइने। The Basel Accords refers to the banking supervision accords. Banking supervision means that आप बैंकों पे निगरानी रखने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, और निगरानी क्यों रखना है कि डिपॉजिटर्स के पैसे उसके अंदर सेफ हैं या नहीं है। Getting that is the meaning of supervision. Recommendations on banking regulations issued by the Basel Committee on Banking Supervision. The short form is what? BCBS. The Basel Committee on Banking Supervision is a committee of banking supervisory authority that was established by the central bank governors of the group of 10 countries in 1974. But मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इन 10 countries के साथ जो developed country थी, there were 2 more countries who were part of it, that is Spain and Luxembourg. Okay, so 2 countries. So in total, 12 countries were there who approached BIS for the purpose of forming a committee called Basel Committee on Banking Supervision. Okay. Now, if you talk about the current thing about the Basel Committee of Banking Supervision, so today they have around 45 members from 28 jurisdictions consisting of central banks and authorities with the responsibility of banking regulation. For example, अगर इंडिया की बात करें, RBI is also a member of this Basel Committee for Banking Supervision. So we are active member of it, and we are also providing our input that how you can make the banks strong. Okay. आगे देखिए, it provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters. Its objective is to enhance understanding of key supervisory issues and improve the quality of banking supervision worldwide. The BIS is an international financial institution owned by central bank that fosters international monetary and financial cooperation and serve as a bank for the central banks. Okay, as a bank to the central bank. For example, when you talk about the banker to bank, so in case of our country, is a banker to bank. It is a Reserve Bank of India, is a banker to bank. So same way you can say, when it comes to the bank of RBI, it is the BIS who is basically working as a banker to the Reserve Bank of India in terms of giving the guidelines, in terms of giving suggestion, in terms of following up कि whether the Reserve Bank of India is actually being working at a right way or not. और देखिए इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि अब जानते हैं हमारे देश में डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल बैंक्स दोनों ही हैं। अगर इन मल्टीनेशनल बैंक्स को ठीक से नहीं आप रेगुलेट या मैनेज करेंगे, देन सर्टेनली यू कैन से दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अदर कंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि आप जानते हैं टुडे वी आर लिविंग इन अ मल्टीनेशनल वर्ल्ड, क्योंकि मल्टीनेशनल मीन्स दैट ऑल ओवर यू हैव द कंपनीज विच आर बेसिकली वर्किंग इन मोर देन वन कंट्री, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मल्टीनेशनल वर्ल्ड। तो अगर एक बैंक जो इंडिया में काम कर रहा है और अगर वो 10 और देशों में काम कर रहा है, और अगर उसका बिजनेस नेगेटिवली इंपैक्ट इंडिया में होता है, तो मान के चलिए कि वो इंपैक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन केस ऑफ अदर कंट्रीज। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो पहला पॉइंट तो देखिए ये है। उसके बाद देखिए अब मैं आता हूं आपके इस बात पे कि व्हाई दिस कमिटी वाज सपोज्ड टू बी मेड इन 1974, दैट इज कॉल्ड एज अ बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। एक छोटी सी स्टोरी देखिए मैं आपको बताता हूं। देयर वाज अ बैंक कॉल्ड हर्स्टेड बैंक दैट बिलोंग्स टू अ कंट्री कॉल्ड जर्मनी। ठीक है, देखिए बैंकों का ना काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। बैंकों में आप लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, एंड यू नो दिस थिंग, व्हेन इट कम्स टू डिपॉजिटिंग मनी, द पीपल आर डिपॉजिटिंग मनी इन द सेविंग अकाउंट एंड मोर ओवर इन द करंट अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो पैसा आप लोग डालते हैं, उस पैसे को कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इवन इफ यू आर बीइंग डिपॉजिटिंग मनी टुडे, you can withdraw even after an hour if you want. You have the ATM card and you have the checkbook with you. Then you have the fixed deposits that you've been doing for certain months, year or years I would say. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, बैंकों को जो हम लोग पैसा देते हैं that is lying with the bank for some time in this case, because at any time the people can withdraw, so there is no guarantee that this money is going to be with the bank for a long term, even for months. It totally depends upon the pattern of withdrawal of you people.
और जो एफडी में पैसा होता है वो आपका मान के चलिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी आपने टेन्योर दिया उसके हिसाब से पैसा आपका रहता है। ठीक। अब देखिए हम लोग जो पैसा डिपॉजिट बैंक में करते हैं, बैंक आगे उसी पैसे को लोन के रूप में कस्टमर को देता है, एंड दैट लोन्स आर फॉर 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 10 year, 20 years ऑल्सो इन केस ऑफ होम लोन्स एंड बिजनेस लोन्स। सो देखिए पॉइंट क्या है, बैंक पैसा लेता है किससे? द पीपल हु आर गिविंग मनी टू द बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म, एंड दिस मनी इज बीइंग गिवन बाय द बैंक्स टू समबडी who is basically taking the money for a long term and providing the money back into small amount. Getting what I am saying? यानी कि बैंकों के काम करने में छोटा सा फॉल्ट है, और वो छोटा सा फॉल्ट क्या है? That you are taking money for short term sources and you're giving this money to those who are being taking this money for a comparatively longer term. अब देखिए सब कुछ अगर ठीक चल रहा है, यानी कि जिनको आपने पैसा दिया है वो अगर पैसा अपना टाइम से रिटर्न कर रहे हैं, सो यू गेटिंग द मनी बैक। और आप जानते हैं बैंक में जितने कस्टमर होते हैं उसमें से सारे के सारे कस्टमर एक दिन में नहीं पहुंच जाते पैसा विड्रॉ करने के लिए, दे आर गोइंग इन वेरी स्मॉल अमाउंट। कभी 1% अप्रोच कर रहे हैं, कभी उससे कम लोग अप्रोच कर रहे हैं, सो वेरी फ्यू पीपल आर बीइंग अप्रोचिंग। तो है क्या, जो ईएमआई से पैसा वापस आया, जब लोग डिपॉजिटर्स अपने पैसे को रिटर्न मांगने आए बिकॉज दे वांट टू विड्रॉ एंड डू सर्टेन एक्सपेंडिचर, तो यही पैसा उनको प्रोवाइड कर दिया। यानी कि पैसा जा रहा है, यानी कि बैंक में पैसा आ रहा है आपके द्वारा, लोन में जा रहा है, लोन से पैसा रिटर्न आ रहा है, फिर आप लोग विड्रॉ कर रहे हैं। अगेन पीपल आर डिपॉजिटिंग, गोइंग टू द पीपल हु आर बोरोइंग, अगेन मनी इज कमिंग बैक एंड गिविंग बैक टू यू। ओके, दैट इज व्हाट। अब देखिए ये जो साइकिल है, अगर ये नॉर्मली चलता रहे और इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, तब तो बैंक आराम से काम करते रहेंगे। पर वहीं पे मान के चलिए अगर यहाँ पे जो साइकिल है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब इन द सेंस व्हाट, अगर लोग पैसा कम डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पैसा कम डिपॉजिटर्स कर रहे हैं और द ओनली पॉइंट इज द बैंक विल नॉट बी एबल टू ग्रो। ओके, बट बैंक में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम कब आएगी? जिनको आपने पैसा दिया है अगर उनमें से कुछ डिफॉल्ट कर रहे हैं, लाइक 1%, इवन लेस देन दैट, और 2% पीपल हैव बीन डिफॉल्टिंग, देन इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि बाकी जो 98% लोग आपका पैसा रिटर्न कर रहे हैं उसमें तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, प्रॉफिट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो छोटा मोटा लॉस है बैंक उसको रिकवर कर लेगा विदाउट एनी इशू। द प्रॉब्लम इज व्हेन लॉट ऑफ पीपल स्टॉप गिविंग योर मनी बैक, स्पेसिफिकली टू द बिजनेस loans which you provided, and now the companies are doing frauds of crores of rupees, even of millions and billions of rupees, the companies are being doing fraud. तो सोचिए जब एक बड़ा चंक कई सारी कंपनी देना बंद कर देंगी तो कहीं ना कहीं बैंक को प्रॉब्लम आएगी इन लोगों को पैसा लौटाने में, एंड दैट लीड्स टू व्हाट, अ सीरियस इश्यू विल एमर्ज इन द बैंक। और होगा क्या? देयर इज अ पर्सन कॉल्ड ए हु वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ मनी, और उसको कहीं ना कहीं खटका कि यार कुछ तो गड़बड़ है बैंक में, बैंकों के पास इतना पैसा नहीं, बिकॉज फॉर द लास्ट 2-3 days व्हेन आई एम अप्रोचिंग द बैंक टू विड्रॉ माय मनी, दे कीप ऑन सेइंग कि ये प्रॉब्लम है सर्वर में, वो प्रॉब्लम है, यहाँ गड़बड़ है, वहाँ गड़बड़ है, कल आइए, ये छुट्टी पे है, वो छुट्टी पे है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। When this kind of messages or this kind of things will be simply felt by certain more people, then in a way a kind of a message will spread in the industry कि बैंक में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है भाई। And then after that what happened, the people will start approaching the bank to simply check कि whether a money is safe or not। और अगर ज़्यादा लोगों को ये आइडिया लग गया कि हाँ बैंक में प्रॉब्लम है, तो मान के चलिए बैंक में पैसा विड्रॉ करने वालों की लाइन लग जाएगी और बैंक बर्बाद होने का पक्का हो जाएगा, बैंक बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो देखिए हर्स्टेड बैंक जर्मनी के साथ यही हुआ। 1974 में जब कुछ बड़ी कंपनियों ने हर्स्टेड बैंक के साथ डिफॉल्ट किया, ओके, so it was not like lot of companies defaulted. When few companies defaulted and they were not able to receive money from certain companies from USA, तो मान के चलिए मार्केट में एक मैसेज गया कि बैंक में प्रॉब्लम है, लोग पैसा लेने गए और बैंक बर्बाद हो गया। ओके, and you know this thing, when a bank is working in more than one country, then it is going to impact the other banks also. तो काफी सारे बैंक इम्पैक्ट हुए। तभी मान के चलिए ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन शुड नॉट emerge at a global level. The developed country thought that we need to make the banks working even more stronger. जैसे आप कहते नहीं है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं,
एग्जाम में अगर आपने सिंपल सिंपल पढ़ाई करी है तो मान के चलिए चांस ज्यादा है फेल होने की अगर पेपर टफ आ जाए। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने एग्जाम में बहुत ही थरोली प्रिपेयर किया है, आपने सब कुछ करा है, एंड द एग्जाम इज टफ, देन स्टिल यू आर बीइंग एबल टू पास इट। इफ नॉट विद डिस्टिंक्शन देन यू स्टिल बीइंग एबल टू पास द एग्जाम। तो वही लॉजिक है। तो डेवलप कंट्रीज ने बोला दैट वी नीड टू मेक द बैंक सो स्ट्रॉन्गर, वी नीड टू मेक द बैंक सो टफ to prepare themselves to simply face such kind of a difficult condition also, so that they will be able to save themselves and they will sail through, and the money of the depositors are being kind of secured। क्योंकि मान के चलिए अगर बैंकों पे से कस्टमर्स का भरोसा उठ गया, खासकर डिपॉजिटर्स का भरोसा उठ गया, तो सारे बैंक बंद हो जाएंगे, बिकॉज nobody will go and deposit their money in the bank। why people are depositing their money in the bank? Because they feel that the money is safe there। getting what I'm trying to say? तो 1974 में G10 countries plus Spain and Luxembourg, these 12 countries approached BIS and they said that we want the banks to be more stronger in their working, and that's why a committee was made in the name of Basel Committee for Banking Supervision। ठीक है, और इस कमेटी को बोला गया कि हम चाहते हैं आप कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करें बैंक्स के काम करने में कि बैंक्स और स्ट्रांग हो जाएं and they will be able to face such kind of problems। So when the Basel Committee for Banking Supervision was made, then you won't believe, almost after 14 years of very hard work, the first time the Basel norms or Basel Accord were given. And that's why you can say these are being known as a Basel. Why the name has been given Basel? Because the place where the BIS is working is Basel। Okay, तो नाम दिया Basel Accord or Basel norms। Accord means law, norms means again rules and regulation that you need to follow। So पहला जो Basel 1 आया, that was in 1988 if we talk about। जैसे देखिए the Basel 1 came in 1988, then 2004 and 2010। why you have 1 2 3? जैसे आप जानते हैं कि when you basically read a book, then you know that all the time you have some sort of updates in the books and you are getting a new edition। in the same way, you know, you have been getting additions here, additions in the what, that you've been getting the updated rules and regulation। क्योंकि देखिए बैंक्स के काम करने का तरीका रोज चेंज होता रहता है। Like as you remember, there was only the the banking, that only the branch where you have your account, only there you can do the banking। Then after that you have the core banking solutions, then you have internet banking solution, then you have this mobile banking solutions, then you have different kind of loans category, this and that। So many new things are being introduced in the banks working। So when you have new things, you can say that are supposed to be upgraded with the new rules and regulation। that's why you can say all the time the Basel is providing new rules। अब देखिए आप यहां पे एक चीज देखेंगे, चाहे बैंक्स को कितना ही स्ट्रॉन्ग कर दिया आपने ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि देखिए जो बेसल नॉर्म्स हैं दैट आर सपोज टू बी फॉलोड बाय मेंबर कंट्रीज एट ऑन एनी कॉस्ट। और बेसल कहता क्या है, बीएस कहता क्या है, ईदर यू कैन अडॉप्ट दीज रूल्स एंड रेगुलेशन दैट विल मेक योर बैंक स्ट्रॉन्ग गिवन बाय बीआईएस इन द सेम मैनर, चाहे तो इनको सेम टू सेम आपको अडॉप्ट करना है, or if you want to make certain changes then you can do it, but please make the changes to make the rules even more strict। यानी कि उनको और स्ट्रिक्ट बनाइए, उनको लीनियंट मत बनाइए, बिकॉज इफ यू मेक इट लीनियंट देन देयर इज एन इश्यू। बताऊंगा इसका एग्जांपल क्या है, हाउ दे बीइंग एबल टू मेक मोर स्ट्रिक्ट। अब देखिए बेसल 1 आने में लगे 14 साल, बेसल 2 आने में आप देखिए ऑलमोस्ट 16 years they took। But the Basel III norm was given in lot of, I would say, haste। only in 6 years they provided। क्यों? Because in 2007-8 when US faced crisis and so many banks over there failed, like Lehman Brothers and the others when they failed, तो समझ में आया चाहे हमने कितने ही रूल्स को स्ट्रॉन्ग बना लिया पर कहीं ना कहीं अभी भी कमी रह गई है। That's why they brought the Basel III norms in a very faster manner, and that's why you can say still there are a lot of issues are there in terms of implementing Basel 3। तो confusions बहुत सारी हैं, और एक रेशियो तो भी कुछ साल पहले प्रोवाइड की, 2-3 साल पहले, इन द नेम ऑफ नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। ओके, देयर इज अ रेशियो कॉल्ड नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। क्या है ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पॉइंट क्या है, अब तैयारी है बेसल 4 की, और बेसल 4 बोला कि जनवरी 2022 तक आ जाएगा, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक नाउ दे सेइंग दैट इट विल कम बाय 2023 जनवरी। दैट मींस वेरी सून if the things will be fine then Basel 4 norms will be given। ठीक है, अब देखिए जो भी ये नॉर्म्स बीआईएस प्रोवाइड करता है
It's not like that when it is supposed to be implemented, you need to implement it immediately or within a day or something. देखिए, जैसे कहते हैं ना, अच्छी आदतें एक दिन में नहीं लगती हैं, अच्छी आदतें लगती हैं, it will take time. That's why you can say Reserve Bank of India issued directives in 2013. In fact, 2012, I would say, that all the banks in India need to implement Basel III norms from 1st April 2013 onwards. जैसे आप देखिए लास्ट वाले पॉइंट में लिखा है 2013 से इंप्लीमेंट करना, एंड दे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गेव देम 6 years टू इम्प्लीमेंट इट. 6 साल दिए, सोचिए, 1-2 साल नहीं, 6 साल दिए गए बैंकों को कि आप इनको इंप्लीमेंट करें. But you know this thing, in case of our country, banks are being so good that when they were not able to implement these norms by 2019, it was extended till 2021 and then 2022 also. Still, you can say so many banks in case of our country not being able to implement the Basel III norms completely. और अब बात हो रही Basel IV की, तो जल्दी जब Basel IV आ जाएंगे फिर उनको इंप्लीमेंट करने की बात की जाएगी. Getting what I'm trying to say? तो देखिए, मैं ये कहूंगा बेसल नॉर्म्स एक तरह की अच्छी आदतें हैं बैंकों के काम करने की. जैसे देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हाउ दे बीइंग एबल टू प्रोटेक्ट द बैंक्स. जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि आई हैव अ बैंक, कि मेरे पास एक बैंक है और उस बैंक में कुछ लोग, यानी कि नॉर्मल जो रेट है डिफॉल्ट की 1-2%, उससे ज्यादा लोग डिफॉल्ट कर गए और मार्केट में न्यूज फैली कि बैंक में प्रॉब्लम है, बैंक में काफी सारे लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया. एंड नाउ द पीपल आर बीइंग कमिंग बैक टू सिंपली विड्रॉ द मनी. अब पॉइंट क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर बैंक को जिनको लोन दिया है उनसे पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है, then obviously the bank is going to face certain problem. But imagine on the other hand, अगर मेरे बैंक में मेरे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल है. कैपिटल होता है वो जो कंपनी के ओनर या प्रमोटर लगाते हैं, दैट मीन्स शेयर होल्डर्स, ओके, जो कंपनी में पैसा इन्फ्यूज करते हैं. और डिपॉजिटर्स का पैसा अलग मुद्दा है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज बिलोंग्स टू दी डिपॉजिटर. सो कैपिटल इज समथिंग विच इज बीइंग गिवन बाय दी शेयर होल्डर्स टू दी कंपनी. तो वही मान के चलिए, अगर मेरी बैंक को चलाने के लिए जो हम प्रमोटर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उन्होंने अच्छा खासा कैपिटल बैंक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल के रखा हुआ है, दैट मीन्स इफ आई नीड 100 rupees टू रन द बैंक एज अ ओनर, देन आई एम पुटिंग लेट सपोज 110, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाल के रखा है बैंक के अंदर. तो उस केस में अगर मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बैंक में अवेलेबल है, दैट इज नॉट ऑफ डिपॉजिटर्स मनी, दैट इज आर मनी. तो उस केस में क्या है, देखिए, जब ऐसी सिचुएशन आएगी, कुछ ज्यादा लोगों ने डिफॉल्ट कर दी, तो इस पैसे का इस्तेमाल करके मैं अपने डिपॉजिटर्स को पैसा रिटर्न करके अपने बैंक को नॉर्मल तरीके से चला सकता हूं. समझ पा नहीं पा रहे? और आप जानते हैं डिफॉल्ट हुए हैं, दैट इज फाइन, बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू अकर एवरी टाइम. ये रोज नहीं होने वाला है. जैसे कहते हैं ना, बुरा समय आया है, हमेशा थोड़ी रहेगा, कुछ टाइम में आके चला जाएगा. उसी तरह से मान के चलिए, अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ है, दैट इज फाइन, बट दैट इज नॉट गोइंग टू स्टे ऑल द टाइम इन द बैंक्स. और आने वाले टाइम में मान के चलिए, अगर आप इस झटके को सह गए, जब ज्यादा लॉस हुए हैं, एंड देन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी विद यू टू सिंपली टेक केयर दीज प्रॉब्लम, देन सर्टेनली 2-3 साल के अंदर चीजें नॉर्मल भी हो जाएंगी. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दैट इज व्हाट द बेसल इज बेसिकली प्रोवाइडिंग टू मेक द बैंक्स बेस स्ट्रॉन्गर. जैसे कहते हैं ना कि अगर नींव मजबूत हो तो अच्छे अच्छे भूकंप, अर्थक्वेक्स को आप सह लेते हैं. जैसे भी एग्जांपल दिया, दैट इफ द एग्जाम इज वेरी टफ एंड इफ यू बीइंग वेरी वेल प्रिपेयर्ड, then still you're being able to get good amount of passing marks and you will not face any kind of issue in that. Are you able to understand what I'm trying to say? So that is what the Basel norms are. अब देखिए पॉइंट क्या है, बेसल नॉर्म की जो बुक है वो है एकदम काफी बल्कि है. अब पॉइंट ये आता है कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के अंदर क्या पढ़ना है. सो डू रिमेंबर, फॉर अस द बुक विच इज सपोज टू बी मार्क्ड एज अ रेफरेंस इज द इकोनॉमिक सर्वे. तो इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे, हमेशा जो बैंकिंग का हमारा चैप्टर होता है उसमें देयर आर सर्टेन थिंग्स दे मेंशनिंग अबाउट द बेसल नॉर्म्स. तो मान के चलिए उस 600-700 पेज की जो हमारी रिपोर्ट है, उनमें से केवल हमें 3-4 रेशियोज पढ़ने होते हैं. यानी कि वो रेशियो जो ये बताते हैं कि अगर बैंक उसको मेंटेन कर पा रहा है, एंड द बैंक्स आर बेसिकली कंपैरेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर. और उन रेशियोज के नाम क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जैसे हिंदी में बोलते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात. क्या बैंक के पास इतना कैपिटल है एडिक्वेट मात्रा में कि आने वाले इन झटकों को वो सह जाएगा, ऐसा कुछ होता है? इफ दे आर मेंटेनिंग देन इट्स फाइन.
अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बेसल ने बोला है कि इस रेशियो को सारे बैंकों को 8% पे मेंटेन करना है, बट हमारा आरबीआई कहता है नहीं, आई वॉन्ट माई बैंक टू सिंपली कीप दिस रेशियो एट 9%. दैट मीन्स 1% हायर टू मेक देम इवन मोर स्ट्रॉन्गर हियर. गेटिंग? सेकेंड रेशियो तो बोलते हैं, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एलसीआर. यानी बैंक के पास हमेशा इतना लिक्विड अमाउंट होना चाहिए कैश में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कि अगर बैंक्स में एक्स्ट्रा विड्रॉल्स हो रहे हैं तो बैंक ने क्या किया, थोड़ा सा अमाउंट कैश का साइड में उठा के रखा हुआ है. ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि हर महीने अगर मैं 100 रुपए खर्च करता हूं और 100 ही रुपए कमाता हूं तो ठीक है, बट फेस्टिवल्स के टाइम में मेरा खर्चा 120 हो जाता है, तो 120 के केस में जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा है मुझे वो सेव करके रखने हैं पहले, बिकॉज इफ आई नो that at the time of Diwali I'm going to spend 20 rupees extra, so I should have this money with me. So I need to cover my extra withdrawal in the bank, so that if extra amount of withdrawals are happening in comparison to deposit, so I should have this money with me. थर्ड जो रेशियो होता है वो होता है आपका leverage ratio. So this ratio is again about having adequate amount of capital in the bank. Okay, and then the fourth ratio is, which I just told you, net stable funding रेशियो. तो ये 4 रेशियो है. अब देखिए एलसीआर जो होता है वो हमें बताता है क्या बैंक के पास इतना कैश पर्याप्त है कि वो एक्स्ट्रा विड्रॉल्स 30 दिन के लिए सह पाए, 30 days. एंड दैट रेशियो इज ऑल अबाउट दैट इज द बैंक इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, दैट दे विल बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर एटलीस्ट 1 year. तो ये है बेसिकली आपका फॉर शॉर्ट टर्म एंड दैट इज फॉर बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म हेयर. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो देखिए आरबीआई कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बैंक और स्ट्रांग हो. दैट्स व्हाई यू कैन से व्हाटएवर नॉर्म्स व्हिच हैव बीन गिवन बाय बेसल टू अस, 1% over and above we are being making. And moreover, not only this, the government of India through RBI, they also said that you need to make the banks even more stronger by providing even more amount of amount. जैसे अब यहां पे देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं. जैसे बेसल कहता है कि हर देश में कुछ ऐसे बैंक होते हैं which are basically the leader in the market and these are supposed to be safe. यानी कि किसी भी कीमत में अगर बड़े बड़े बैंक जो हैं वो देश में फेल हो गए तो मान के चलिए लोगों का पूरा विश्वास उठ जाएगा बैंकिंग इंडस्ट्री से. सो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन ए वन टर्म कॉल्ड टू बिग टू फेल. यानी कि कुछ बैंक इतने बड़े होते हैं कि वो फेल हो ही नहीं सकते हैं, बट व्हाट इफ दे विल गेट फेल, देन यू कैन से दैट इज गोइंग टू शैटर द कंप्लीट फेथ ऑफ द पीपल इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. तो आरबीआई कहता है, तो बेसल कहता है इनफैक्ट कि आपको ऐसे बैंकों को फाइंड आउट करना है एंड यू नीड टू प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर. जैसे होता है ना क्लास में जो टॉपर होता है उसे हमेशा टीचर्स पुश करते रहते हैं, तू और पढ़, तू और पढ़, तू और पढ़. ठीक है, उसी तरह से मान के चलिए सबसे बड़े बैंक है उनको आपको पुश करना है टू बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर, कि तुम्हारे सामने अगर बड़े से बड़ी विपदा आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो आप उसको संभाल पाए, यू आर बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ इट. दैट इज व्हाट. तो अगर इंडिया में बात करते हैं तो हमारे पास 3 ऐसे बैंक हो जिसको आरबीआई बोलता है कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक. दैट मीन्स दीज आर बीइंग कॉल्ड एज अ domestic systematically important banks in our country that are supposed to be protected. And what are these? We have SBI, ICICI Bank, and then we have HDFC Bank, Housing Development Finance Corporation Bank, State Bank of India, Industrial Corporation, Industrial Credit Investment Corporation of India. So these are the 3 banks which have been called as a DSIB. यानी कहीं ना कहीं किसी बैंक को DSIB कहने का मतलब ये कि जब इन बैंकों के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको हेल्प करेगी, यानी कि वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज अ पार्ट ऑफ दिस बेसल नॉर्म्स. तो देखिए हमें अपनी क्लास में इन 4 रेशियोज को डिस्कस करना होता है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम हमारा लेके जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब हम क्लास में इसको डिस्कस करते हैं ना, then students are having such a great amount of clarity about the Basel norms that they mean like कि सर अब तो हमें भी इतना आइडिया है कि जितना लोगों को बैंकों के अंदर जो काम करते हैं उन्हें इतना आइडिया नहीं होता है. एंड मोर ओवर ओनली बाय लुकिंग
on these ratios, if the banks are maintaining, you will be able to conclude कि whether a particular bank is being kind of stronger or not. ठीक है, तो ये पॉइंट है. उसके अलावा देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊं, सो इफ यू टॉक अबाउट, तो जो BIS के मेंबर है, जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो बीइंग मेंबर टू इट. सो इफ यू सी द लिस्ट, so we have Reserve Bank of India mentioned here, who is a member of the BIS. So currently, if we talk about 35 countries or the central bank from Europe are basically the member, then 15 in Asia, 5 in South America, 3 in North America, and 2 Oceanic, and 3 in Africa. Okay, that is the number of countries. And there is a one bank which was recently suspended from the BIS. The name is bank is Central Bank of Russian Federation. और आप जानते हैं इसके पीछे रीजन क्या है. तो अगर देखिए यूएस के बैंक का नाम देखेंगे तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू गेट द नेम ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए. सो इफ यू फाइंड आउट यू हैव द बैंक ऑफ अल्जीरिया, दिस एंड दिस, सो लेट्स फाइंड आउट वेदर यू हैव दिस पर्टिकुलर बैंक. यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व सिस्टम, सो बैंक ऑफ इंग्लैंड. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, okay, so you will also find the name of the People's Bank of China, Central Bank of Chile, Bank of Canada. So different banks who are being member to it. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि बेसल इज ऑल अबाउट गिविंग द रूल्स, रेगुलेशंस which are supposed to be implemented, or you can say the kind of a good habits which a bank is supposed to simply incorporate in their working. आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा बिहाइंड द बेसल नॉर्म्स. ये बेसल होता क्या है. अब देखिए, ऑब्वियसली टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स इन अ कंपैरेटिवली वेरी गुड वे, देन आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल अगेन that from 10th of October, we are going to start a comprehensive batch for economics, and that is also being published on my page. Okay, so if you simply go in the description part of this video and you will find out my page link, then you will go there and see the course has been published. The timings are being finalized, so timings will be 3:30 to 5:30 PM. Okay, so in total we are going to take around 40 classes. Under that we will cover economics comprehensively, and you can use my code PGUPSC to get 10% off on the different courses. You can use this code for my course, and you can also use this code for any course if you're joining over the Unacademy, and you will get 10% off there. Okay, so that is all I need to tell you about the BIS and Basel. So 23 main series is test series is going on, so around 15,000 rupees you people need to pay, and 30 test, then feedback, analysis session, then superior answer model, and the best practice for improving your performances, so that you can simply go for it. And then you can also join the optionals. So out of the 4 optionals, you can say the 3 are the highest scoring optionals in case of UPSC mains examination. These are also having one of the highest amount of selections also in case of UPSC. So you can opt for this. Okay, and then after that, the UPSC combat, that is obviously over. So the doubt, you can simply go for it by scanning this QR code. And then in the end, thank you very much. Take care, और जल्दी ही मिलते हैं with the lecture number 7 tomorrow. Bye-bye.